یہ صرف خبریں نہیں، یہ وہ کہانیاں ہیں جو فائلوں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی سراغ نہ ڈھونڈتا، کہیں قاتل آزاد ہے تو کہیں مقتول کی آواز اب بھی انصاف مانگ رہی ہے۔ اور کہیں سوال یہ نہیں کہ جرم ہوا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ انصاف کیوں نہیں ہوا۔ میں ہوں آکاشا یاسین اور آج سراغ میں ہم آپ کو لے جا رہے ہیں پاکستان کے ان شہروں میں جہاں جرم نے صرف جانیں نہیں لیں بلکہ اعتماد، رشتے اور نظام سب کچھ زخمی کر دیا۔ منچن آباد تھانہ میکلوڈ گنج کی حدود میں خواتین کی نازیبہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے معاملے پر پولیس نے کارروائی کی۔ پولیس نے بیوہ یاسمین کی مدعیت میں ملزم مظہر فرید کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ ملزم کے موبائل سے متعدد خواتین کی نازیبہ ویڈیوز برآمد ہوئیں جنہیں بنا کر وہ خواتین کو بلیک میل کر رہا تھا۔ عوام نے فحش ویڈیوز بنانے اور شیئر کرنے والے نوجوان کے خلاف سخت کارروائی اور سزا کا مطالبہ کر دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ساجد شریف کی اس رپورٹ میں۔ منچن آباد کے تھانہ میکلوڈ گنج کی حدود میں سوشل میڈیا پر خواتین کی نازیبہ فحاشی ویڈیو وائرل ہونے کے معاملے پر یاسمین بی بی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی سرکل منچن آباد محمد زاہد کے احکامات پر فوری ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن تاحال عوامی حلقوں میں غصہ کم نہ ہو سکا۔ اہلیان علاقہ کا کہنا ہے ایسے ملزم کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے۔ ضلع بہاول نگر کے سرکل منچن آباد کے تھانہ میکلوڈ گنج کی حدود میں چند دن قبل ایک انتہائی دل خراش فحش ویڈیو سکینڈل کا وقوع جو ہے وہ ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ ایک نوجوان لڑکے نے تقریباً 10-12 خواتین کے ساتھ برہنہ ہو کر زنا کاری کی ہے، حرام کاری کا مرتکب ہوا ہے اور ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہیں۔ علاقہ کے نوجوانوں پہ، بچیوں پہ اس کے منفی ترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جبکہ ہماری انتظامیہ نے ایک مدعی کی مدعیت میں ایک ایف آئی آر دے کے اس معاملے کو ٹھپ کر دیا ہے۔ حالانکہ متعدد درجنوں خواتین اور وہ لڑکا یہ سارے کے سارے برابر گناہ میں شریک ہیں۔ سبھی خواتین کو اور اس لڑکے کو ایسی سزا دی جائے جو نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ آئندہ ایسی غلطی کی کوئی بندہ سوچ بھی نہ سکے۔ آئی جی پنجاب نو ریکویسٹ ہے کہ جو گندی سوشل میڈیا تے چل رہے ہیں افحاشا عورتاں اور افحاشا لڑکے جتنے بھی ہیں انہاں تے قانونی سختی کاروائی کی جاوے۔ ساری اپیل ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز نو کہ اندے تے غور کیتا جاوے۔ میری اپیل آرمی چیف تک ہے۔ منچن آباد کا جو ہے وہ سب سے بڑا سکینڈل ہے، جو کافی ساری ویڈیو جو میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں اور کافی ساری عورتیں ہیں جو متاثر ہوئی ہیں، جو پس پردہ ہیں وہ آگے نہیں آنا چاہتی، لیکن اگر کوئی بندہ آگے نہیں آ رہا تو یہ یقیناً جو ملزم ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ایسے جو سکینڈل مزید بھی سامنے آئیں گے اور اگر ایسے بندوں کی جو ہے پشت پناہی ہوتی رہے گی۔ فحاشا جہاں ویڈیو آئی ہیں انہوں نے ملزمان کو پرچہ دیتا جائے۔ حکومت سے گزارش کرتے ہیں ہمارے جو میکلوڈ گنج کے علاقے میں جو فحاشی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ان کے خلاف سخت کارروائی ہے، اور جو ملزمان ہیں جو معاشرے میں اس کے ساتھ بد امنی پھیل رہی ہے ہم گزارش کرتے ہیں پنجاب حکومت سے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ میکلوڈ گنج سٹی کے اندر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی نازیبہ ویڈیوز کی بھرپور الفاظ میں وکلا کمیونٹی کی طرف سے مذمت کرتا ہوں، اور کسی بھی شخص کی پرائیویسی میں مخل ہونا اور اس کی مرضی، اس کی ول کے خلاف خفیہ طور پر یا اعلانیہ طور پر فحش ویڈیو بنانا سائبر کرائم کی زد میں آتا ہے، اور یہ جرم ہے اور اخلاقی طور پر بھی یہ جرم ہے، اور ہمیں معاشرتی سطح پر ایسے گھناؤنے فعل کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے اور حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ میں متعلقہ حکام اور پنجاب پولیس کے متعلقہ جو تفتیشی افسران اس کیس سے منسلک ہیں ان سے بھی نہایت ادب سے گزارش ہے کہ وہ اس کی شفاف انکوائری کرتے ہوئے اور جو اس میں ملوث ہیں اس واقعے میں، اس گھناؤنے فعل کے اندر، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اور انصاف کے حصول کے لیے وہ اپنی بھرپور صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے ان ملزموں کو کیفر کردار۔ میڈیا پر ایک بہت سا معاملہ جو ہے گردش کرتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر کس طرح سے ایک مظہر فرید نامی جو لڑکے ہے اس کی جانب سے جو ہے
बच्चियों की, यहाँ पर खवातीन की नाजेबा वीडियोस जो है यहाँ पर मंजरे आम पर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रही हैं। मामला क्या है, इस हवाले से हमारे साथ यास्मीन बीबी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मेरी बहन की मामला होया है और कौन नौजवान से जिन्होंने ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮਦਰ ਫਰੀਦ ਸੀ। ਮਜ਼ਰ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। बैक साइड से। ਹਾਂਜੀ। अच्छा पूरा मामला की है? पूरा तमाम मामला मामला हम दसो जरा। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਸਾਂ। ਜੀ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰਾ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਸਾਂ। ठीक है। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੇਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤੇ मैं तेरी ना वीडियो वायरल कर देंगे। ते अच्छा रात तकरीबन कितने बजे का टाइम था रात जब ये आया था? 1 बजे का टाइम सी। 1 बजे का टाइम था। हाँ जी। कैसे कोई दरवाजे के जरिए या कोई दीवार वगैरह फांग कर आया था? नहीं दीवार तो जी सामने वाली ये दीवार हाँ जी। यहाँ से ये सीढ़ी लगी हुई हाँ है? जी, यहाँ अच्छा वाली। इधर से आ गया? इधर से आया अच्छा जी। दरवाजे को लॉक किया है? हाँ जी। ठीक है। हाँ फिर? जी, अभी वो वाला बुआ साडा टुटा पिया ठीक थी। है। अंदर इन्हें मैं ढक्कन लगी आई जी। ते इन्हें ये बुआ तोड़ा ते कुंडी उतली टुट गई, ये बाहर भज गया। ठीक है। अब तो मेरा फैसल भाई ते मुर्तजा मेरा देवर ये नाल दे कमरे च है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਵਿੜਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪਿਆ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਣ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੰਧ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੇ ਐਂ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਵਾਦ, मेरा तो कोई भी नहीं। अच्छा मेरी बहन ये वाकया होता है उसके बाद आपने पुलिस से रजू की है, पुलिस दरखास्त दी, दरखास्त अभी आपकी FIR हो चुकी है, हाँ जी। मेडिकल भी हो चुका है आपका। अच्छा थाना पुलिस की जानिब से जो है आपको मुकम्मल जो है सपोर्ट की जा रही है, इंसाफ मिल रहा है आपको? मुलजम जो है उसी दिन गिरफ्तार हो गया था। सर्कल DSP मिंचलाबाद का क्या कहना है इस हवाले से हम आगे जाएंगे और तमाम तर सूरत हाल जो है इनसे भी आगाह करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानून हरकत में आता है और यहाँ पर मरकजी मुलजम जो है मजर फरीद खरल, इनके खिलाफ FIR का अंदराज भी होता है। इसके बाद हमारी आज टीम जो है अवामी सर्वे के बाद उलमा इकराम, सीनियर कानूनदान, वकला बरादरी के पास भी पहुंची थी और उनकी राय भी जानी थी कि इस जो मुलजम है इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो जिसके बाद सर्कल DSP मिंचलाबाद के पास भी पहुंचे। सर्कल DSP मोहम्मद जाहिद साहब का कहना था कि मरकजी मुलजम मोहम्मद मजर फरीद के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर ली गई है। मजीद जो है इस इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला भी जारी है और इसमें जो भी मुलव्वस होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी और इनको कैफे करदार तक भी पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर प्रोग्राम सुराग को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। और अब आपको लिए चलेंगे सरगोदा में, जहाँ के थाना फैक्ट्री एरिया के हुदूद में खौफनाक इंकशाफ हुआ है। एक नामालूम कातिल जो महज एक वारदात नहीं बल्कि सीरियल किलर की खूनी जंजीर की नई कड़ी साबित हुआ। मुलजिम का नाम पुलिस रिकॉर्ड में पहले से मौजूद था और तफ्तीश के दौरान उसने 4 मजीद कातिल करने का एतराफ़ भी किया। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अरसलान तबस्सुम की इस रिपोर्ट में। सरगोदा से मैं हूं मोहम्मद अरसलान तबस्सुम। मुजरिम चाहे जितना ही चालाक क्यों ना हो लेकिन कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। थाना फैक्ट्री एरिया के हदूद में एक दिलखराश वाक़या पेश आया जहां पर मुजरिम ने डंडा और सौटों के वार करके एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। जी नहीं भरा तो पत्थर का वार करके उस शख्स को मौका पर कत्ल कर दिया। सरगोदा पुलिस के लिए इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करना एक चैलेंज बन गया। मकतूल कहाँ का रिहायशी था और कातिल कौन था? मुजरिम ने दौरान तफ्तीश क्या क्या इंकशाफात किए और सरगोदा पुलिस ने कितना अरसा के अंदर मुजरिम को गिरफ्तार किया, इसी हवाले से सरगोदा पुलिस और लवाहिकीन से भी बात करेंगे। सरगोदा पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से कितना एक मुतमिन है, आइए चलते हैं। के साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO फैक्ट्री एरिया हसनात, उनसे जानते हैं। मुझे ये बताइएगा ऐसा किस तरीके के साथ हुआ कि आपको इसके बारे में इल्म हुआ, आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और फौरी कार्रवाई की जिसके मुद्दई भी हाजिर नहीं थे? जी बिल्कुल भाईजान, बात यह है कि जब हमें रिस्पॉन्ड किया तो हमने मौके पे चले गए। मौके पे जो उधर मंशियात पीने वाले लोग थे उन्होंने बतलाया कि ये इनकी आपस में लड़ाई हुई है, जो मंशियात पीने वाले हैं उसने इसको पत्थर मारा है जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ हुई है।
اور اس کے بعد ہم نے مختلف ٹیمیں تشکیل دی جو جہاں سے منشیات پینے والے لوگ تھے، مختلف ذرائع سے ان سے پتہ کیا گیا، تو آخر کار ہمیں پتہ چلا کہ ایک اصغر نامی شخص ہے جس نے اس کو مرڈر کیا ہے۔ پھر ہم نے اس کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد اس نے اس دوران تفتیش تسلیم کر لیا کہ میں نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو اصغر نامی شخص آپ نے گرفتار کیا، اس کا اس سے پہلے بھی کوئی کریمنل ریکارڈ تھا؟ آیا وہ اس واقعات کے اندر ملوث رہا ہے یا نہیں؟ جی بالکل یہ ملوث رہا ہے، یہ تقریباً 3 سے 4 مقدمات جو ہے نا آلریڈی اس میں چلان ہو چکا ہے، سیم اس نے یہی وقوعات کیے ہیں اسی پیٹرن کے ساتھ۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو جو اصغر نامی شخص ملا، اس کے حوالے سے آپ مجھے ڈیٹیل سے بتائیں کہ یہ کس طریقے سے آپ نے پکڑا، اور جو بندہ مقتول تھا اس کا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے گھر والے کون ہیں، اس کے لواحقین کون ہیں؟ جی بالکل ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، سورس ہے پولیس کے پاس کہ فنگر پرنٹس لگواتے ہیں۔ فنگر پرنٹس لگوانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ بندہ فلاں ہے، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے وہ بھی چلان ہو چکا تھا۔ اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فلاں ریاض نامی شخص ہے جو مقتول ہے، اور جو مارنے والا ہے وہ بھی ہم نے جب ٹریس کیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کا نام اصغر ہے۔ پہلے تو اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، ہم مختلف ذرائع سے پتہ چلا کہ وہ اصغر نامی شخص ہے، وہ ایسے وقوع کرتا ہے، ہم نے اسی پہ توجہ دی، پھر ہم نے تقریباً 7 ڈیز کو جو ہے گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری کا عمل کیسے پیش آیا، کس طریقے سے ڈرامائی انداز میں آپ نے اس کو گرفتار کیا، سورسر کہاں سے آئے آپ کے پاس، کون کون سے آپ نے سورس استعمال کیے؟ ہم نے اپنی ٹیمیں تشکیل دیں اور اپنے جو ملازمان ہیں ان کو سول پارچات میں ہم نے بھجوایا مختلف جگہ پہ جہاں پہ یہ منشیات پیتے ہیں، وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ وہاں پر جگہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں ہم نے اس سے گرفتار کر لیا۔ جی ہم اس وقت ASP سٹی سرگودا کے آفس کے اندر موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں اس بلائنڈ مرڈر کے حوالے سے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو سرگودا کے اندر یہ منشیات کے عادی لوگ تھے جنہوں نے یہ قتل کیا، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیل؟ جی بالکل، تانا فیکٹری ایریا میں ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوا تھا کہ اس میں ایک بلائنڈ جو ہے کسی نے ایک منشیات فروش ہے یا ایڈکٹ تھا سمپلی، تو اس کے بارے میں اطلاع تھی کہ اس کو کسی نے مضروب کیا، ہٹ کیا ہے سر پر۔ تو وہ جب ہم نے رسپونڈ کیا تو وہ اس ٹائم تو ریسکیو 1122 والے اس کو ہاسپٹل لے گئے تھے۔ وہاں پر ود ان 7-8 آورز اس کی ڈیتھ واقع ہوتی ہے، اور اس کو بیسکلی ہیڈ انجری تھی، کسی سٹون یا بریک سے اس کو مارا گیا تھا پیچھے سے۔ تو چونکہ جس کی ڈیتھ ہوئی تھی مقتول جو تھا اس کی کوئی شناخت تھی نہیں، تو فردر ہم نے ویریفائی کیا، اس کے فنگر پرنٹ سے ٹریس کیا، اس کی فیملی ٹری اور فردر چیزیں وہ پتہ چل گیا، لیکن سٹل جو اس میں قاتل تھا جس نے اٹیک کیا تھا اس کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ تو پھر ہم نے لوکل انٹیلیجنس سے اور وہاں جو لوگ موجود تھے تو کس طرح اس کا سراغ لگایا کہ قتل جو ہے یہ کس طرح ہوا، یہاں کوئی اس طرح انسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی لڑائی ہوئی تھی۔ تو وہاں سے ہمیں اصغر نام کا بندہ جو اس کے بارے میں اطلاع ملی کہ اس کی جو چال چلن ہے یا اس کا جو ریکارڈ ہے وہ اسی طرح ہے، تو وہ خود بھی ایڈکٹ تھا اور جو مقتول تھا وہ بھی ایڈکٹ تھا۔ تو جب ہم نے اس کو کس طرح اریسٹ کیا، ریڈ شیڈ کیا اور اس کو اریسٹ کیا، تو اس کے بعد اس نے انٹاروگیشن کے دوران کافی انکشافات کیے، جس کو ہم فردر دیکھ رہے ہیں ڈیٹیل سے کہ اس نے پریویسلی کچھ وارداتیں کیے ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں۔ اس طرح حالات و واقعات کو دیکھا کہ بندہ جو ہے اس کے لواحقین بھی نہیں ہے، ڈسٹرکٹ جھنگ کا رہائشی ہے، اور پولیس نے اپنی ذمہ داریاں کیسی؟ یہ بیسکلی ایک بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے، کیونکہ ایک تو اس کی شناخت نہیں تھی، اور دوسرا جو جائے وقوع تھا وہ بھی اس طرح کلیئر نہیں تھا کہ واردات ایگزیکٹلی کس جگہ پر ہوئی تھی۔ لیکن اسٹل جب ہم نے کرائم سین وزٹ کیا، وہاں پر خون پڑا تھا، اور وہاں پر لوکل کوئی کیمرہ تو نہیں تھا، لیکن جو لوکل سے جو وہاں پر موجود لوگ تھے ان سے ہم نے تھوڑا بہت کلو لیا کہ اس طرح کوئی لڑائی وہ رپورٹ ہوئی تھی، لیکن اسٹل نہ مقتول کا کسی کو پتہ تھا نہ قاتل کا۔ تو یہ پھر ہم نے ہیومن انٹیلیجنس سے، وہاں لوکل سے اور ہمارے جو سیکیورٹی برانچ سے اس کے ذریعے ہم نے ٹریس آؤٹ کر لیا۔ اور سیکنڈلی یہ تھا کہ جو جب تک مقتول کا پتہ نہیں تھا تو ان کے فنگر پرنٹ سے ہم نے اس کا اندازہ لگایا کہ بندہ کہاں سے آیا ہے، اور بیسکلی یہ دونوں ایڈکٹ سے نشائی تھے، تو ان کی اس سے پہلے بھی آپس میں لڑائی ہوئی تھی۔ تو یہ جو ملزم ہے اصغر نام سے، اس نے جسٹ بدلہ لینے کے لیے اٹیک کیا تھا، اور فردر اس کی جو نیچر ہے، جو اس کا ریکارڈ سامنے آیا کہ وہ ایک سیریل کلر کے طور پر اس نے پہلے بھی اس طرح وارداتیں کی ہیں۔
हम इस वक्त मौजूद हैं रियाज के अहल खाना के साथ जो लावारिस था, जिसको कत्ल कर दिया गया। मुझे आप बताइएगा कि आपका भाई था जो घर से निकला हुआ था 10-15 दिन से, जी तो आपको किस तरीके से पता चला कि हमारा भाई कत्ल हो गया? फोन आया सी थाने कि रियाज कत्ल हो गया। पहले मेरा कज़न गया सी थाने, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਆਓ। ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਓ। कई दिन तक सिविल हॉस्पिटल के अंदर लाश पड़ी रही। जी जी ठीक है, तो आपको आप आए तो आपका क्या आपको ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਰਦਾ ਖਾਨੇ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। अच्छा, बताया गया है कि बंदा घर से काफ़ी दिनों से निकला हुआ था, आपने घर से उसको निकाला हुआ था या वो खुद नशे की वजह से घर से गायब? जी वो नशा करता ही, नशे की वजह तो घरों बाहर सी, 15 दिन तो घर को नहीं आया, 15 दिन तो बाहर ही सी। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜੇ ਹਾਂ ਘਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਰਿਆਜ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ, 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾੜ 'ਚ ਰਿਹਾ, 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਥਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। तो ये एक वाक़या नहीं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4-5 पहले ही कत्ल उन्हें किए हुए सन। ये नहीं को लावारिस था, हम उसके साई हैं, चलो वो अपने नशे की वजह से घर नहीं आंदा सी, तो ये दोस्त एक दूसरे के साथ बैठना उठना नशे की वजह से, तो उनका कहीं झगड़ा हुआ, जो भी हुआ हमको तो बाद में पता चला कि कोई झगड़ा मगड़ा होया था उनका थोड़ा बहुत, तो वो मारी हुई, उसकी वजह 13 दिन वो इंतज़ार में रहा, वो उस प्लाट में जिसमें उसने कत्ल किया है। इस तरह ही उसने पहले 5 आदमियों को मारा है, कत्ल किया है पत्थर मार के। वो इतना बड़ा पत्थर उठाता है कि आदमी को एक बार ही मारता है, दूसरी बार मारने की ज़रूरत नहीं होती। सरगोदा में सीरियल किलर की ये गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है, मगर ये एक तल्ख हकीकत भी है। असगर उर्फ चूसनी के हाथों 5 जाने गई। नशे ने एक इंसान को दरिंदा बना दिया। ये महज जुर्म नहीं, ये सियासी बीमारी है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना नागुज़ीर हो चुका है। कैमरामैन शाहिद राजा के साथ मोहम्मद अरसलान तबस्सुम, एम न्यूज़, सरगोदा। सच अभी पूरा सामने आना बाकी है। ब्रेक के बाद सुराग में हौलनाक हकीकत के मजीद इंकशाफात होंगे। यहाँ पर वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, मुजफ्फरगढ़ के थाना सिटी की हदूद में नशे की लत ने एक और ख़ानदान को उजाड़ दिया है। नशे के लिए पैसे न देने पर शौहर ने अपनी ही बीवी को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। 7 बच्चों की मां की ये दर्दनाक मौत माशरे में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ चुकी है। वाक़े ने इलाके में खौफ और अफसोस की फ़ज़ा कायम कर दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना साजिद लियाकत की इस रिपोर्ट में। नशा एक ऐसी लानत है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान और माशरे को तबाह कर देती है। ये वाक़या ज़िला मुजफ्फरगढ़ थाना सिटी की हदूद भुटापुर का है, जहाँ 7 बच्चों के बाप को नशे की ऐसी लत लग चुकी थी, ना इसे रिश्तों का एहसास रहा, ना दीन का, ना इंसानियत का। नशे के लिए वो अपनी बीवी को कमाने पे मजबूर करता। जब बीवी ने मजीद पैसे देने से इनकार किया तो मुलजिम आपे से बाहर हो गया और कुल्हाड़ी के वार करके एक माँ को इसके बच्चों से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। मम्मा किसने कत्ल किया था? मेरे बाबा ने। क्यों किया था? पैसों की वजह से नशा करते थे और जब आते थे तो विंडो दरवाजे सब कुछ बेचते थे। अगर मम्मा पैसे ना देती तो क्या कहते हैं फिर जुल्म करते थे मम्मा के ऊपर, ऐसे विंडो वो कर देते थे, बेच देते थे, दरवाजे बेच देते थे, बर्तन क्या सब कुछ बेच देते थे। और मम्मा कोई वो करती तो बात करती तो उन्हें क्या कहते हैं मारते पीटते। आपकी मम्मा कोई काम करती है? हाँ जी, जोम कंपनी में काम करती थी। नाल इतने जुल्म करेंदा बालों को आदे कमीजा उतारो, कमीजा जेड़े लहे ने इतने सोटिया मरेंदा, इतना जुल्म करेंदा
ਬਾਲ ਚੋਦੇ ਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਾਲ ਇਵੇਂ ਸੁੱਕਤੇ ਇਵੇਂ ਬਸ ਸਾਹ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਇਵੇਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੰਨਿਆ ਬਾਹਰੋਂ ਵੰਨਿਆ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਛੁਰਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਵੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬਾਲ ਚੋਦੇ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਕੋਈ ਸੁੱਕ ਤੇ ਇਵੇਂ ਬਸ ਜਿੱਦਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਸਾਈਂ ਕੋਲ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਗਿੱਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਮੁਕਾਲਾ ਮਰਦਾ बालन यूनुस जो है ना एक मंशियात का आदी मुजरिम था जिसने अपनी बेगम को जो है ना मंशियात के मामलात की वजह से जो है ना अक्सर मार कुटाई इसका मामूल था यहाँ पे, इसलिए जो है ना इसने कत्ल किया। उसको बार बार इसका जो है ना टार्चर करना, मारना, कूटना, मंशियात की लत की वजह से जो है ना ये अक्सर पैसों की डिमांड करता था, जिसकी वजह से ये मामला इनका हुआ, इसने उसको कत्ल कर दिया। एहलिया पाबंद सोमसलात थी, सब्र बर्दाश्त की तस्वीर थी, लेकिन जब इसने नशे के लिए मजीद खर्चा देने से इनकार किया तो शैतान सिवा शोहर आपे से बाहर हो गया, कुल्हाड़ी का वार किया और लम्हों में एक माँ को अपने बच्चों से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल करके मुलजिम शोहर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। कातिल अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद बलूचिस्तान फरार हो गया और 6 माह की तगोदो के बाद पुलिस थाना सिटी मुजफ्फरगढ़ ने कातिल को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया एक बार फिर सवाल उठाता है कि आखिर नशे के खिलाफ कब और कैसे मुअस्सर इकदाम किए जाएं। मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि मुलजिम मोहम्मद यूनुस को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। राना साजिद, एम न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। मालाकंड की तहसील दरगई सखाकोट में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां मुबैना तौर पर पैसों की लालच में बीवी ने अपने भाई और खालाजाद भाई के साथ मिलकर शौहर को कातिल कर दिया। वाक़े ने इलाके में शदीद रंजो गम की फ़ज़ा कायम कर दी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे गुल करीम खान की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त ज़िला मालाकंड तहसील दरगई सखाकोट में उस मुकाम पर मौजूद हूँ जो यहाँ पे लतीफ़ुर्रहमान उर्फ नौशाद खान जो अपनी बीवी ने कत्ल किया गया, ये उसका घर है, उसका मकान है। ये तकरीबन 6-7 साल सऊदी अरब में रहा। उसने मेहनत मजदूरी किए और अपने बच्चों को पालने के लिए किए थे कि इतना तकलीफ़ बर्दाश्त किए कि उसने ये सोचा था कि चलो मैं सऊदी अरब में अपना मजदूरी मेहनत करूँगा और फिर पाकिस्तान में जाके बच्चों के लिए घर बनाएंगी, लेकिन वो ख्वाब उसका पूरा नहीं हुआ। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पे लतीफ़ुर्रहमान उर्फ नौशाद खान का भाई मौजूद है। मैं इनसे जानता हूँ कि ये वाक़या किस तरह पेश हुआ है और इसने सऊदी अरब में जो मेहनत मजदूरी की थी इस वजह से की थी कि मैं पाकिस्तान में जाके अपनी बच्चों को पेट पालूँगा, उसके लिए घर बना दूँगा, जगह बना दूँगा, लेकिन वो ख्वाब उसका पूरा नहीं हुआ और उसने बीवी ने और रिश्तेदारों ने उसके साथ जो बेवफाई की है उसके हवाले से मैं उनकी भाई से जानता हूँ कि ये हालात कैसे हुआ और बीवी इस तरह कैसी तैयार हो गई कि उसको ले इतना मेहनत की, इतना वक्त गुजारा परदेश में और ये जालिम ने दिल पर पत्थर रखा और वही शौहर जो 7-8 साल सऊदी अरब में रहा और उसने बीवी के लिए, बच्चों के लिए घर बनाने का ख्वाहिश था, वो भी उसने खाक में मिला दिया। तो इनका भाई मौजूद है, मैं इनसे जानता हूँ कि ये वाक़या कैसे पेश रुनुमा हुई। सऊदीया में तकरीबन 7-8 साल टाइम गुजारा इसने और जो पैसा कमाया तो सब इन बच्चों के लिए बेच दिया। तो जॉइंट क्या है उसको अकाउंट खोला था, उसी में पैसा उधर से आता था, उसके पास जो रसीदी होती थी वो भी उसके साथ थी। तो जब ये पाकिस्तान आया, बीवी से पूछा कि भाई चलते हैं बैंक में, यो मुझे बताओ कि भाई कितना ये पैसा जमा हुआ है बैंक में। तो जब गए बैंक वाले पे तो बैंक वाले ने बोला भाई अकाउंट में तो पैसे है ही नहीं। तो वो बहुत परेशान हुआ कि भाई 6-7 साल मैंने गुजारे उधर और ऐसे कुछ भी नहीं है, हाथ कुछ भी नहीं है। तो घर आके तो इसी बात पे लड़ाई झगड़े ये हो जाते थे, लेकिन बीवी ने भाइयों को, ये जो खालाजाद भाई है पता नहीं उसको दे दिया है, क्या किया है ये खुदा को पता होगा। लेकिन इसी बात पे ये जो मसला शुरू हुआ था ना, इसी बात के ऊपर मसला शुरू हुआ और इसको कत्ल किया। ये जो घर आप देख रहे हो, इसी घर के लिए उसने पूरा पैसा जमा किया। एक कमरा बनाया था, बाकी कमरे ऐसी पड़ी हुई आपके सामने है। तो हो गया है अभी क्या। कत्ल में कौन कौन मुलविस था? कत्ल में जी उसका जो है ना एक भाई है और एक खालाजाद भाई है, ये दोनों आके उसके साथ मिले हुए थे, उसको कत्ल किया।
ये जो तीनों मिल के कत्ल तीनों मिल के उसने कत्ल किया हुआ है, तीनों मिल के कत्ल किया हुआ है। और कत्ल करने के बाद फिर यहाँ घर में उसने दफनाया और जलाया, घर में भी दफनाया, इधर जलाया भी, सब कुछ उसने इधर ही किया। जिला मलकन तहसीली दरगाह खाकोट थाने में मौजूद हो। मेरे साथ ये वो जवान है जो खाकोट में कुछ दिन पहले एक गुमशुदगी का पोस्ट शेयर हो गया था नौशाद खान के नाम से। इसने उसकी बीवी इन्वेस्टिगेशन किया। मेरे साथ यहाँ पे पोस्ट कमांडर थाने का मौजूद है। मैं इनसे जानता कि उसके हवाले से वो क्या कहते हैं। ज़हुलावल तاسو د میډیا رونو شکریا ادا کوم چې رته سوراله او دا کومه کاروي چې موږ کړی دا تاسو عوامو ته په خپل سکرین په ذریعہ باندې خای کم دی دا په سوشل میډیا باندې وایرل شو چې یاره د مجبور آباد چې کم دی لطیف الرحمن اور په نوشاد چې دا یو کستی او دا د خپل کور نه چې کم دی ورک شوی دی پاغي باندې زمونږه ډي سي سی وو چې کم دی نو په یا شرفاو سیب چې کم دی نو سټریکټلی ماته هدایت زما او زما نور افسران چې کم دی ای سی ګان صاحبانو میجر سیب ته سټریکټلی هدایت وکړل چې زر تر زر چې کم دی دا کس چې کم دی دا معلوم شي د پته ولګي۔ نوشاد خان کا موت جو ہے ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ وہ غیر دینوں میں بھی نہیں ہے، غیر مذہبوں میں بھی ایسی واقعہ پیش نہیں آیا جس طرح مسلمانوں کے اندر ہو رہی ہے۔ ظالم عورت جو ایک بھائی اور ایک خالزاد بھائی کو بلا کے پہلے اس کو قتل کیا گیا، پھر قتل کرنے کے بعد اس کو جلا بھی دیا اور جلانے کے بعد پھر اس کو صحن میں دفنا دیا۔ ان لوگوں کا حکومتی وقت سے مطالبہ ہے کہ اس ظالم کو ایسا سزا دے دو جو آئندہ دوسرے لوگ ایسی غلطی نہ کرے، اگر وہ خاتون ہو یا بیوی ہو جو بھی ہے، لیکن اگر اس طرح ظلم بڑھتا جائیں گے تو ہمارے معاشرے کا حالات کیسے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک گل کریم خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ میاں چنو کی انارکلی بازار میں سوتیلے بیٹے نے مبینہ طور پر اپنے ہی باپ کے خلاف قتل کی منصوبہ بندی کی اور اسے قتل کر کے موقع سے فرار ہو گیا، جس کی تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ واقعے نے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم کر دی۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد حسین کی اس رپورٹ میں۔ میاں چنو انارکلی بازار میں پیش آنے والے قتل کے افسوسناک واقعہ نے شہر بھر میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ السلام علیکم جی، سراغ پروگرام کے ساتھ میں ہوں محمد حسین۔ آج میاں چنو انارکلی بازار کے اندر موجود ہوں۔ یہاں پر حنزلہ نامی نوجوان نے اپنے باپ کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا اس گھر کے اندر۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ گھر ہے، یہ کمرہ ہے، یہاں پر بے دردی کے ساتھ رات کا ٹائم تھا، قتل کیا گیا۔ آگے یہ سٹوری کیا ہے، یہ کہانی کس طرح ہے، وجہ کیا بنی، آئیے آج کی سٹوری کے اندر جانتے ہیں۔ ذریعہ کے مطابق طیب طاہر جو کینیڈا سے پاکستان اپنی پراپرٹی کے معاملات کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، گزشتہ رات اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ صبح جب اہل خانہ نے دیکھا تو وہ خون میں لت پت مردہ حالت میں پایا گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی جمشید اکرم بٹی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور شواہد اکٹھے کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ سوتیلے بیٹے کے ہاتھوں باپ کا اندھا قتل، ایک دل دہلا دینے والی کہانی میاں چنو کی فضا اس دن سوگوار ہو گئی جب ایک باپ پردیس سے واپس اپنے وطن لوٹا تھا، اپنے ہی گھر میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل صرف ایک شخص کا نہیں تھا بلکہ رشتوں، اعتماد اور خاندان کی بنیادوں قتل کا مقتول کئی سال کینیڈا میں مقیم رہا۔ پردیس میں محنت مزدوری کر کے اس نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے خواب دیکھے۔ وطن واپسی کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال لے، رشتوں میں پڑی دھاڑیں بھرے اور باقی زندگی سکون سے گزارے۔ مگر اسے کیا خبر تھی کہ جس گھر کو وہ اپنا سمجھ رہا ہے وہی گھر اس کی موت کی اماجگاہ بن جائے گا۔ سوتیلا بیٹا انتظار میں تھا، دل ہی دل میں کیا کیا پلان بنا کے بیٹھا تھا کہ باپ کے آتے ہی اسے اپنے راستے سے ہٹانے کا پلان بنا رہا تھا۔ ہماری اہل محلہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا، چند دن پہلے ہمارے میاں چنو میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بچے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اصل میں جو یہ واقعہ تھا کہ بیٹا جو ہے وہ باہر جانا چاہتا تھا، باپ اس کا کینیڈا سے آیا تھا اور باپ جو ہے وہ بچوں کو باہر لے کے جانے پہ پتہ نہیں جانا چاہ رہا تھا یا نہیں جانا چاہ رہا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ بچہ جو ہے وہ لوگوں کی غلط سوسائٹی اور لوگوں کی باتوں میں آ کے اس نے جناب اپنے باپ کو قتل کیا۔ اس کی وجہ عنایت یہی تھی کہ وہ جناب باپ جو اس کا سوتیلا تھا وہ مطلب اس کو باہر نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا،
कि सारा जो सिनेरियो है ना जी, ये इस तरह का जो वाकया हुआ कि सिर्फ गलत सोसाइटी और बेरारवी की वजह से मेरा तमाम वालिदैन को पैगाम है कि जितने भी वालिदैन हैं अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, उनकी सोसाइटी पर नजर रखें, उनकी हर तरह आजकल का जो माशरा चल रहा है, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के वो दोस्त बने और उनके साथ हर बात शेयर करें। जी बिल्कुल, ये गलत सोसाइटी और गलत बैठकों का नतीजा जो बदबख्त औलाद ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। गुज़श्ता रोज़ आपने सुना होगा कभी बाप ने अपना बेटे ने अपने बाप को जायदाद के तनाज़े के लिए कत्ल कर दिया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है। इस तरह की औलादें ये देखें, ये सारा कुछ होता है, ये गलत सोसाइटियों का असर होता है। जो गलत सोसाइटियों में बैठते हैं तो इधर ही रह जाना, सारा कुछ रह जाना, लेकिन उस बदबख्त ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। तो उसका यही कहना था कि वो हमारा बाप ना वो बाहर नहीं जा रहा, वो कनाडा से आया हुआ था, तो कनाडा वो भेज रहे थे फैमिली वाले, लेकिन वो जा नहीं रहा था। लेकिन मेरा यही तमाम वालिदैन से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को ना वो अच्छी सोसाइटी दिया करें, उनकी देखभाल किया करें, रोज़ाना का चेक किया करें कि वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं। बहुत गलत सोसाइटी जो इसने अपनाई है, जिसने आज अपने वालिद को कत्ल किया, ये ना हो कि कल कोई गलत सोसाइटी में बैठ के आपका बच्चा भी ये कदम उठाए। नाज़रीन, यहाँ पर हमने अहले मोहल्ला से बात की है, शहरियों से बात की है। उनका ये कहना है यही वो कमरा है और यहाँ पर अभी भी इसको ताला लगाया गया, लॉक लगा है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि यहाँ पर लोग जो है खौफ की वजह से यहाँ पर दाखिल भी नहीं होते और ये जो मकान है मतलब कोई इसको रेंट के ऊपर भी नहीं लेना चाहता, इस वजह से कि खौफ इतना ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर हंजला ने अपने सौतेले बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल किया था। ऐसी महफिलें जो वक्ती लज्जत देती हैं मगर अंजाम में सिर्फ तबाही छोड़ जाती हैं। बाप और बेटे के दरमियान अक्सर तलक कलामी रहती थी, कभी जायदाद का झगड़ा, कभी कनाडा ना जाने के गम, कभी बाप की नसीहतें जो बेटे को नागवार गुजरती। रफ्ता रफ्ता यही नसीहतें नफरत में बदल गई और सतेला बेटा बाप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगा। कत्ल की रात भी बज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक था मगर अंधेरे में एक खौफनाक फैसला किया जा चुका था। सौतेले बेटे ने इंतहाई सफाकी से अपने बाप की जान ले ली और कत्ल को अंधा कत्ल जाहिर करने की कोशिश की, शवाहद मटाने की कोशिश की गई ताकि ये जुर्म हमेशा राज ही रहे। मगर कहते हैं न खून कभी छुप नहीं सकता। मोबाइल डाटा, मशकूक हरकत और बयानात के तनाज़े असल कत्ल को बेनकाब कर दिया। आखिरकार सौतेला बेटा कानून की गिरफ्त में आ गया और बाप के खून की चीखें इंसाफ तक पहुंच गईं। ये वाकया सिर्फ एक कत्ल की दास्तान नहीं बल्कि एक सबक है। बुरी सोबतें, लालच और नफरत जब दिलों में घर ले आए तो रिश्ते खून के प्यासे बन जाते हैं। एक बाप जो औलाद के लिए परदेश में जिंदगी खचपा दे, आखिरकार इसी औलाद के हाथों मारा जाए तो ये माशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है। मियां चन्नू का ये वाकया आज भी सवाल बनकर खड़ा है। क्या हम अपनी नस्ल को वक्त पर सही और गलत फर्क सिखा रहे हैं? क्या बुरी महफिलों के अंजाम से हम वाकया ही सबक ले रहे हैं? ये कहानी हर बाप, हर बेटे और हर घर के लिए एक खामोश मगर गहरा पैगाम है कि अगर रिश्तों को वक्त पर ना संभाला गया तो अंजाम सिर्फ पछतावा होता है। लालच, हौस, बुरी महफिलें बाज दफा पछतावे का वक्त भी नहीं देती। नाज़रीन, आज के सराग प्रोग्राम के अंदर आपने देखा मियां चन्नू नारकली बाजार के अंदर एक बदबख्त सतेले बेटे ने अपने बाप को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। नाज़रीन, यहाँ से हमें सीखना चाहिए कि हमारे मुआशरे के अंदर आए रोज़ इस तरह के वाक़यात जो हैं रूनुमा हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दें और उन्हें बुरी सोबत से बचाएं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हुसैन, एम न्यूज़, मियां चन्नू। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और आप रुख करेंगे कश्मीर का। मुल्क के दूर दराज इलाकों से आने वाले अफराद के लिए खतरनाक मकाम बनता जा रहा है। कुछ लोग यहाँ बेहतर मुस्तकबिल और ख्वाबों की ताबीर की उम्मीद लेकर पहुँचते हैं तो कुछ सस्ती गाड़ी और पुरकशिश तनख्वाह वाली नौकरी के झांसे में आकर अगवा का शिकार हो जाते हैं। ये सूरत हाल इलाके में बढ़ते हुए जुराइम और इंसानी स्मगलिंग के संगीन खतरात की निशानदही करती है। इस हवाले से मजीद तफसीलात मुलाहिजा कीजिए हाकिम अजीम नसरानी की इस रिपोर्ट में।
कहते हैं जब तक लालची जिंदा है ठग भूख नहीं मरता। अक्सर लालच इंसान को बड़ी मुसीबत में फंसा देती है। ऐसे ही कुछ वाकयात कश्मीर जिले के मुख्तलिफ थानों की हदूद में रूनुमा होते रहते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मोबाइल फोन्स पर राब्तों के बाद जवान तो जवान बूढ़े भी दुल्हन लेने के लिए कश्मीर कच्चा में पहुंच जाते हैं और अपने आप को डाकुओं के चुंगल में फंसाकर अपने प्यारों की मुसीबत में इजाफा करते हैं। भाई मैं हूं मोहम्मद नवाज, जिला ननकाना साहब के रहने वाला। फेसबुक पे मेरे बेटे के साथ एक लड़की का राब्ता हुआ। इधर कच्चे के इलाके की लड़की थी। वो उसको कहती रही कि मैंने शादी करवानी है। मेरे बेटे ने मुझे कहा कि पापा आप शादी करवा लें। मैं उनके कहने पर इधर आ गया शादी के चक्कर में। तो इधर मैं जा रहा था कच्चे के इलाके में, तो आगे पुलिस वालों ने रोका कि आप कहाँ जा रहे हो। तो मैंने उनको बताया भाई मैं इधर जा रहा हूँ शादी के लिए। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि इधर भाई शादी मादी नहीं होती, इधर तो बंदे को अगवा कर लेते हैं, मार देते हैं, उनसे तावन मांगते हैं, भारी रकम मांगते हैं। डाकू हनी ट्रैप के जरिए अगवा होने वाले बदनसीबों के वर्षा से लाखों रुपए बतौर तावान तलब करते हैं। तावान अदा ना करने पर उन पर इंसानियत से तशद्दुद किया जाता है या फिर उन्हें कत्ल किया जाता है। बेशऊर और नौजवान इंसान अगर किसी के धोखे में आए तो बात समझ में आती है, लेकिन पढ़े लिखे, नौकरी पेशा और बुजुर्ग इस जदीद दौर में शादी के झांसे में आ जाएं तो इससे बढ़कर अफसोस की क्या बात हो सकती है। मेरा नाम नबीउल है, बड़ा नाम कुरान खान मरहूम है। तो मैं कोहाट का रहने वाला हूँ। इस वक्त मैं लाहौर में ड्यूटी कर रहा हूँ। तो कुछ तो वक्त पहले इस लड़की ने मुझे जहाँ से दिया कि मैं आप शादी करना चाहता हूँ, तो आप सादकाबाद में आ जाएँ। तो मैं जब सादकाबाद में आ गया हूँ तो उसने मुझे कहा कि आप डेरा मोड़ पे आ जाओ। पुलिस वालों का पकड़ लिया, जिसका पुलिस को तय दिल से बहुत से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे बचा लिया। क्योंकि मेरा तमाम लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से बच के रहना कि ये लोगों को इजाज़त देकर फिर बाद में अगर ताउन पैसे न मिले तो बंदों को कत्ल भी कर देते हैं। जैसे कि आपने कहा हनी ट्रैप किडनैपिंग आजकल इसके वाक़यात काफ़ी बढ़ गए हैं। इसमें सोशल मीडिया का इससे लेना देना है। जो हमारे यहाँ पे किडनैपर्स हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू टारगेट करते हैं लोगों को, उनसे राब्ते में आते हैं। इसमें काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें शादी का उनको एक झांसा दिया जाता है, उसके अलावा सस्ती गाड़ी का, नौकरी का, कुछ भी हो सकता है। इस सिलसिले में हमने अपने सोशल मीडिया जो हमारे पेजेस हैं उन पे अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की हुई है, जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं वीडियोस पे, लोग देख भी रहे हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी जा रही है। लेकिन फिर भी ये केसेस उस तरह से रुक नहीं रहे। लेकिन इसमें सॉफ्ट अप्रोच की बजाय हमने एक हार्ड अप्रोच भी ली हुई है कि हमारे जो बस स्टैंड्स हैं कश्मीर के या गुड्डू के, देरा मोड़ के, वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट की हुई है। जो बसेस आ रही हैं उनमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस चल रही हैं। हमारे पुलिस वाले ख़ुद भी खड़े होकर जो भी कोई बाहर का बंदा आ रहा है उसे खुद भी उसका मकसद पूछ रहे हैं किस लिए वो आ रहे हैं, और उनको हम उस हिसाब से गाइड भी कर रहे हैं। पुलिस के बार बार आगाही के बावजूद भी लोग कश्मीर में अगवा होने के लिए आ जाते हैं। लोगों को चाहिए कि कश्मीर आने से पहले इंतजामिया को आगाह करे और अपने आप को मुसीबत से बचा सके। कैमरा टीम के साथ हाकिम नसीरानी, एम न्यूज़ कश्मीर। और अब आपको लिए चलेंगे डेरा गाजी खान में, जहां जराइम की बढ़ती हुई लहर ने शहरियों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। शहर भर में डकैती, चोरी और राहजनी की वारदातें खतरनाक हद तक बढ़ गईं। शहरी अपनी जानो माल और कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ में खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अमीन खान की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान 10 दिनों में जराइम का तूफान, फायरिंग, डकैती और अगवा के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा। जराइम की बढ़ती हुई लहर ने शहरियों का जीना दुबार कर दिया। शहरी और मज़ाफ़ात इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान फायरिंग, डकैती, राज़नी, चोरी, अगवा पर तशद्दुद वाक़या में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद जराइम पैसा अनासर बेखौफ होकर दिन दहाड़े वारदात कर रहे हैं, जिसके बाद अवाम में शदीद खौफ हिरास पाया जा रहा है और पुलिस की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठने जा रहे हैं। थाना सिटी डेरा गाजी खान की हदूद में नौरंग शाह के इलाके में पेश है, जहां पर आशिक हुसैन ने मुबीना तौर पर अल्लाह बख्श खलोल के घर पर फायरिंग कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम असला से लैस होकर आया और अचानक फायरिंग शुरू कर, जिसके घर के दरवाजे और दीवार को नुकसान पहुंचा। घर में खवातीन और बच्चे मौजूद थे, मौजाना तौर पर महफूज रहे। ताम फायरिंग से पूरे इलाके में खौफ हिरास फैल गया। फायरिंग के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने जाए वक़्त से खौल बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी। शहरियों का कहना है ये वाकया कोई अनोखा नहीं है, बल्कि डेरा गाजी खान में जराइम की
इस तवील फहरिस्त का हिस्सा है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और राजधानी के मुतअद्दिद वारदात रिपोर्ट हो चुके हैं। थाना बी डिवीजन की हदूद में चौक चौराहे में दिन दहाड़े वारदात की गई, जबकि रेलवे रोड पर वाक़या एक दुकान से असला की जोर पर 3 लाख रुपया लूट लिए। चोरी और डकैती के वाक़यात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। गुज़िश्ता शब थाना सिटी के हदूद में रेलवे पुली के करीब शराफत करियाना स्टोर पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर 3 लाख रुपए छीन लिया। पुलिस मौके पर तब पहुंच सकी, ताहाल FIR दर्ज न होने पर ताजरान बिरादरी में शदीद तशवीश पाई जाती है। इसी तरह सर्किट हाउस के करीब थाना सिविल लाइन की हदूद में एक शहरी से 2 लाख रुपए छीन कर डाकू फरार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरीदाबाद, शाह सिकंदर रोड, पाकिस्तानी चौक, बोर्ड ऑफिस के नजदीक और क्वेटा रोड पर भी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकद छीनने के वाकयात पेश आए हैं। दाल होटल के सामने डॉक्टर उमेरा शाहीन की क्लिनिक पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात CCTV कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है, ताहम मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। थाना गदई की हदूद में बुध की रात 7 बजे के करीब डाकू काशिफ सैलून में दाखिल हुए, जहां पर मौजूद 4 अफराद से मोबाइल फोन और नकद और घड़ियां छीन कर फरार हो गए। इसी इलाके ब्लॉक नंबर 17 के एक सैलून में भी असला की जोर पर हजारों रुपए और मोबाइल फोन लूट लिए। शहरियों का मुताबिक ये गैंग रोजाना शाम 7 बजे से 8 बजे के दरमियान वारदातें करती है, मगर पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम नजर आती है। जराइम की इसी लहर में अगवा जैसे संगीन वाकया भी शामिल है। तौसा शरीफ की 12 साल मासूम बच्ची कलसूम को अगवा का मामला संगीन रुख इख्तियार कर चुका है। मुतासरा खानदान के मुताबिक बच्ची को जराइम पेशा लतीफ ने अगवा किया, ताहम कई दिन गुजरने के बावजूद बच्ची बाजियाब न हो सकी। वालिदैन ने RPO ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए पुलिस पर रिश्वत तलब करने का इल्जाम आयद किया और फौरी इंसाफ का मुतालबा किया है। तशद्दुद वाकयात का सिलसिला भी जारी है। थाना काले के इलाके में 2 ग्रुप के दरमियान लड़ाई में 2 अफराद जख्मी हो गए। बस्ती हजाने में फायरिंग से एक खातून जख्मी हो गई, जबकि कोट हैबत में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बाग हो गया। क्वेटा रोड पर कांस्टेबल अजमल को कार से टक्कर मारकर जख्मी कर दिया गया, जिसके बाद अहले इलाका ने एहतजाज सड़क ब्लॉक कर दी। ताहम पुलिस की जानिब से कुछ कार्रवाई भी सामने आई है। थाना सदर डेरा गाजी खान में पुलिस मुकाबले के दौरान मुतअद्दिद डकैती के वारदातों में मतलूब डाकू मुजाहिद और आमिर त्रोड़ी के अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी तरह SHO थाना गदई उनकी टीम ने डकैती शुदा मोटरसाइकिल बरामद करके कामयाबी हासिल की। शहरियों का हल्कों का कहना है जराइम की बढ़ती हुई वारदातों ने शहर में खौफ की फिजा कायम कर दी है। लोग शाम ढलते ही घरों में महसूस होकर रह जाते हैं, जबकि कारोबारी तबका शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, मुलज़िम को फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए और मुतासरा को बिला ताक़ीर इंसाफ फराहम किया जाए, ताकि डेरा गाजी खान में अमन व अमान बहाल हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अमीन खान, M न्यूज़, डेरा गाजी खान। जड़ावाला में रेस्क्यू के मुलाजिम के कातिल को 1 साल गुजर चुका, लेकिन अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। राय अब्दुल नासिर को थाना सिटी की हदूद में मुबैना तौर पर नाहक कातिल किया गया था। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुनीबा मुनीर की इस रिपोर्ट में। जड़ावाला के इलाका थाना सिटी में 1 साल कबल होने वाला लर्ज़ाखेज़ कत्ल रेस्क्यू 122 के मुलाजिम राय अब्दुल नासिर की फैमिली आज भी इंसाफ की मुंतज़िर है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने न सिर्फ एक नौजवान की जान ली, बल्कि उसके वालिदैन को आहिस्ता आहिस्ता बिस्तरे मर्ग पर ले गया। मुतासरा खानदान इस टाइम मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मेरे साथ इस टाइम जो मकतूल की बहना मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि आखिर जो अब्दुल अंसर था उसको कत्ल हुए 1 साल हो चुका है। उस 1 साल में आप किन किन मराहिल से गुजर कर इंसाफ मांगा है? मैडम असी ना पहले यहाँ जुनेद है ठंडार, उसके साथ मशवरे के साथ मेरा भाई कत्ल किया गया जुनेद अफजल के साथ। जुनेद अफजल के नाल जो कतल कातिल है ना शरफ राज उनके नाल पहले ड्यूटी करता था। तो पहले इतने वो भी पुलिस उन्हें कुछ दिन पहले ना उन्हें पहले इतों तबादला करा के फिर उधर होर जगह से चला गया। और शरफ राज असद नवाज ने मेरा भाई कत्ल किया। तो जुनेद अफजल ने उन्होंने मशवरे नाल मेरा भाई असद नवाज तो शरफ राज ने कत्ल किया। तो जुनेद इन पूरा मुलवस है। तो जुनेद ने उन्होंने बेकसूर करके शरफ राज न तो फिर असी उन्होंने को इंसाफ सानू नहीं मिला। फिर नासरुल्ला चट्ठा को इंसाफ बन गया। नासरुल्ला चट्ठा ने भी उन्होंने सिफारिश ला लो जनाब आला मरी मेहरबानी सानू इंसाफ दो। नसरुल्ला चट्ठा ने वो पुलिस दे नाल मिल मुल के उन्हें फिर साढ़े जो साढ़े बयान असल बयान असा दिते सी ना वो साढ़े बयान भी उन्हें बदल दिते। साढ़े जो बयान नसरुल्ला चट्ठा ने साढ़े बयान बदल के उन्होंने मर्जी के बयान लिखे गए जी। राय अब्दुल नासिर की वालदा मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे
जी माँ जी बताएं कि आपके कितने बच्चे थे? आपने 5 बच्चे थे। कितने बेटे और कितनी बेटियां थी आपकी? 1 बेटी 5 बेटे। हाँ, जो राय अब्दुल अनासर था ये किस नंबर पर आता है? नज़र इत्थे रंदा अनवराबाद नौकरी लगा या 11-22 च नाले वकील बन गया नाले अनफेल की हुई उन्हें हसा तो इन्हें हक नमाज ते अस हक नमाज पिछू असरा लिया ते असा तो नमाज ते छप्पे ने मारिया। माँ जी कोई अच्छा थानू कोई इंसाफ मिलिया? तुसी कोई पुलिस में रिपोर्ट कराई सी? इंसाफ नहीं मिला सानू कोई इंसाफ नहीं मिला। साल हो गए सानू कोई इंसाफ नहीं मिला। सानू इंसाफ दिता जावे मरिया ने मात मात साडे अंदर रोने लगे तो पिटने लगे मेरे बच्चे भज के कोई इंसाफ नहीं सानू मिला। अब्दुल अनासर के भाई मौजूद है, मजीद हम उनसे भी जानते हैं कि इस कत्ल की आखिर बड़ी वजह क्या बनी। इस कत्ल की वजह कोई कत्ल की वजह नहीं थी। हमारा भाई एक PhD कर रहा सी और सबसे ज्यादा हमारा भाई पढ़ा लिखा हुआ था और एक हसद की वजह से उसको कत्ल किया और जलस रखते थे हमारे भाई से कि ये PhD कर रहा है, ये वकील बन रहा है, ये सबसे ओहदे में भी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और रोज़ ये कोई ना कोई तरक्की कर रहे हैं तो ज़्यादा इसी वजह से उस मेरे भाई को कत्ल कर दिया गया। ये हमारा मरियम नवाज से पहला मुतालबा मेहरबानी कि हमें इस FIR के इस कातिल की जिन लोगों ने कत्ल किया है इसका इंसाफ दिया जाए। जो पैरा फोर्स है मुख्तलिफ पैरा फोर्स बनाई गई है, CCD बनाई गई है और ये मुख्तलिफ किस्म के बनाए गए हैं। मेहरबानी हमें इनसे इंसाफ दिलवाया जाए इस मुकदमे का जिन लोगों ने हमारे भाई को कत्ल किया है। हमारी RPO फैसलाबाद सुहेल अहमद सुखेरा साहब से गुजारिश है कि हमारी एप्लीकेशन को दोबारा सुना जाए अपील को ताकि हमें इंसाफ मिल सके। उसका बहुत ही जो अखलाक और बहुत ही परहेजगार और नमाज़ी 5 वक्त का नमाज़ी था। माशाल्लाह इस इलाके जड़ा वाले में बहुत ही उसका एक जो खिदमत गुजार था रेस्क्यू 1122 में और अपना अंजाम जो है ना सारे अपना बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता था। जिसे बताएं कि आपको 1 साल गुजर जाने के बाद भी इंसाफ क्यों नहीं मिला? जी हम कई दफ़ा इंसाफ लेने के जहाँ भी गए हैं क्योंकि ये लोग हैं ये हमारे मुल्ज़म हैं, ये असर रसूख वाले लोग हैं और हर जगह कोई ना कोई अपना असर दिखा लेते हैं। तो हमारा जनाब RPO साहब से मुतालबा है कि हमें 1 साल हो गया है कि पुलिस ने हमारी कोई नहीं रहनुमाई नहीं की है। हमारे इस वक्त एक मुल्ज़म सर असद नवाज़ गिरफ़्तार है और हमें इसके इंसाफ चाहिए। 1 साल हो गया हमारे FIR को हमारे मुकदमे दर्ज हुए हुए कि हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। यहाँ पर जो है वो मुतासरा ख़ानदान के साथ पूरे अहले इलाका में जो है वो इस गम में शरीक है और इनका कहना है कि 1 साल गुजर जाने के बाद भी हमें जो है वो इंसाफ नहीं मिल सका और हमारे जो है वो वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि मेहरबानी करें हमें जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए। कैमरा टीम के साथ रिबा मुनीर, M न्यूज़, जड़ावाला। जी तो नाज़रीन ये थी वो कहानियाँ जो ना सिर्फ हमें हिला देती हैं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। जुर्म, धोखा और अंजाम की ये हकीकतें हमें याद दिलाती हैं कि हर छुपी हुई हकीकत के पीछे एक कहानी होती है। हम आपके लिए लाते रहेंगे सच के ऐसे पहलू जो आम नज़र से ओझल हैं। हम फैसला नहीं सुनाते, हम सिर्फ सुराग दिखाते हैं। देखते रहिए सुराग, क्योंकि जब जुर्म बेनकाब हो तो वो दोबारा जन्म लेता है। अल्लाह ने के बाद।